Hello, my dear friends. Based on the previous lecture of haloalkanes and haloarenes, let us solve some in-text questions. My dear friends, first try to solve yourself and then match it with my solution. So let us solve first one. So first question in text is write the structures of the following compounds, and you are given five structures. First one is the 2-chloro-3-methyl pentane. So see here, the structure is 2-chloro-3-methyl pentane. Okay, do it yourself, and if you are not able to understand, then ask me. Second is the 1-chloro-4-ethyl cyclohexane. So see, this one is the 1-chloro-4-methyl, नहीं 4-ethyl, 1-chloro-4-ethyl cyclohexane. तो ये स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, समझा तो मैं चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी. आई डिस्कस्ड विथ यू द IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स. ओके, और थर्ड नेम इज 4-tertiary butyl 3-iodoheptane. So this one is on fourth number carbon. See, on fourth number carbon, this is a tertiary butyl, and 3-iodo. Yes, this 3-iodo, and the longest chain is of 7 carbon heptane. Okay, number 4, check it yourself. First do it yourself and check with my solution. 1,4-dibromobutene. See, this one is 1,4-dibromobutene. 1,4-dibromobutene. Number 4 is 1-bromo-4 secondary butyl. पहले भी मैंने आपको समझाया कि किसको टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं. ठीक है, ये जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल, ये जो है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है. ऐसे यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट है, और ये 1 2 3 4 कार्बन इन लाइन, एंड हियर इज 1. द सब्सटीट्यूएंट from the second last carbon from left side. Second last, see, this one is the second last carbon from left side. Okay, that is called secondary. See, this is the secondary butyl, or on the second carbon from the left side is substituent is present here. So this is nothing but a 1-bromo. यहाँ से देंगे 1 2 3 and 4. So 1-bromo 4 secondary butyl 2-methyl benzene. क्लियर? चलिए, ये हो गए 1-bromo-4. ये 5 स्ट्रक्चर्स आपके फिर से मैं बोल देता हूँ. 2-chloro-3-methyl pentane, ये रहा. सेकंड 1-chloro-4-ethyl cyclohexane. थर्ड 4-tertiary butyl. थर्ड 4-tertiary butyl 3-iodoheptane. इसके बाद 1,4-dibromobutene, and last one, this one is not 4, this one is 5. Here sequence is wrong. Number 5, 1-bromo-4 secondary butyl 2-methyl benzene. आप चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए. चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. इंटेक्स सेकंड. ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है. दिस आर नॉट द एक्सरसाइज क्वेश्चन, दिस आर द इंटेक्स क्वेश्चन. वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड during the reaction of alcohol with Ki. So H2SO4 is a strong oxidizing agent. It oxidizes I minus to I2. Sulfuric acid agar 2I minus to, it converted to I2. Okay, so sulfuric acid is not used during the reaction of alcohol with Ki. ये रहा Ki. With H3PO4 we can get Hi. अगर मैं यहाँ पे 2Ki प्लस H2SO4 में ले लेता तो मुझे रिएक्शन मिलता K2SO4 प्लस I2. मुझे ज़रूरत I2 की नहीं है, मुझे ज़रूरत है 2Hi की.
या तो ये HI की, तो HI जो देता है वो H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है, तो यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज कर सकता। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, देखिए, वेन दिस पोटेशियम आयोडाइड, ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो आप बैलेंस नहीं कर सकते, आपको सिर्फ समझना है, सीधा रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप। कैन राइट डायरेक्ट रिएक्शन मीन्स 2I माइनस विथ H2SO4। अब in explanation you can write like this, 2I minus with H2SO4 converted into I2 means -1 to 0 increase by 1, so it's undergo oxidation. Okay, so with sulfuric acid this reaction takes place and we require HI, so here I2 is formed, so we are not using H2SO4। चलिए, बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या बोलते हैं थर्ड क्वेश्चन, पढ़िए आप। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ठीक है, तो एज यू नो दैट डाई हेलोजेंस आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज द विसिनल, second one is the geminal. Answer is on your screen. See, propane you know very well, this is a CH3 CH2 CH3, तो ये 1,3 डाई हेलोप्रोपेन। दिस वन अगर ये फर्स्ट एंड लास्ट पे होगा तो ये विसिनल होगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड पे तो ये भी विसिनल होगा, ये सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर 2,2 डाई हेलोप्रोपेन ये जेमिनल होगा, और ये फर्स्ट नंबर के कार्बन के ऊपर तो ये भी जेमिनल होगा। तो डाई हेलो डेरिवेटिव्स 2 विसिनल एंड 2 जेमिनल्स आर पॉसिबल। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड आर विसिनल, थर्ड एंड फोर्थ आर जेमिनल। अब यहाँ पे भी 2 हेलोजन रख सकते, तो ये एक ही हुआ, आप यहाँ से निकाल दो और यहाँ से रख दो, तो ये भी 1,1 डाई हेलो प्रोपेन ही हुआ। तो किसी को अगर ये आइडिया आता है कि नहीं मुझे ये कार्बन पे नहीं रखना है, इस कार्बन पे रखना है, तो दोनों सूरत में वो कंपाउंड फोर्स सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। विच वन इज द क्वेश्चन नंबर 4? अमोंग द आइसोमेरिक alkanes molecular formula is C5H12. What is molecular formula is given? C5H12. C5H12 means pentane. Identify one that photochemical reaction yield a single monochloride, 3 isomeric monochloride and 4 isomeric monochloride. ओके, फिर से आप देख लीजिए, एमोंग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मोलिकुलर, तो पहले तो आपको बताने हैं कि C5H12 के आइसोमर्स कितने हैं, तो उसमें से सिंगल मोनोक्लोराइड कितने, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कितने, और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, हाउ मेनी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, पहले समझिए। अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 isomeric monochloride, then after 4 isomeric monochloride. So an alkane with molecular formula C5H12 can exist in the following isomeric form, and this isomeric form are this first one is the pentane, second isomeric form is the 2-methyl butane, and third isomeric form is the 2,2-dimethyl propane। हम 11th स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं। आप देख लेना बुक, ऑब्जर्व योर 11th स्टैंडर्ड बुक हाइड्रोकार्बन and the isomers of hexane and isomers of pentane, isomers of butane. Is it clear? So first in this question, first you have to draw the isomers of pentane. 3 isomers are there, तब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। पहले आइसोमर्स देख लीजिए। अब नंबर 1 सॉल्यूशन, there are 3 different halogen atoms that will yield 3 different product, 1 chloropentane, 2 chloropentane, 3 chloropentane, first isomer।
a single monochloride. Single monochloride. फर्स्ट आइसोमर गिव द 3 प्रोडक्ट. सिंगल, ये पहला मैं आंसर दे रहा हूं. फर्स्ट, there are 3 different hydrogen atoms, so 3 different monochloride. First one is the 1 chloropentane, 2 chloropentane, 3 chloropentane monochloride. कहां से मिल रहा है? ये फर्स्ट आइसोमर गिव्स. अब आगे चलते हैं. In 3, third number, all these hydrogen are equivalent. All these are primary hydrogen. So all 9 hydrogens are equivalent. So it will yield only 1 monochloride product. समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लोरीन रखेंगे, यहाँ पे तो भी IUPAC सेम. यहाँ पे क्लोरीन रखेंगे तो भी, यहाँ पे तो भी IUPAC. तो कहीं पे भी क्लोरीन रखो बारी बारी, तो 4 आइसोमर नहीं होंगे मोनोक्लोरो. यहाँ पे रखो IUPAC नेम क्या आएगा? 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. ये 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. तो एक ही आइसोमर मिलेगा. अब 4 मत बोलना, इसको समझ लो. किसी भी कार्बन पे अगर क्लोरीन रखोगे तो उसका नाम सेम है, वो कंपाउंड डिफरेंट नहीं है, वही कंपाउंड है वो. देखिए यहाँ पे, तो in third isomer of pentane gives only 1 monochloro, single monochloro product. अब सेकंड में देख लेते हैं. the second isomer 4 different halogen, it will yield a 4 different product. 4 different product. ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक ये मिलता है सेकंड वाला आइसोमर. 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन. आप रिदम समझ रहे हो ना क्वेश्चन की? आपको ये बताना है इसमें से कि पहले तो लिखना है, क्या लिखना है? पहले आपको, फर्स्ट यू हैव टू राइट द आइसोमर्स ऑफ C5H12 1, 2 and 3. इसमें से कितने मोनोक्लोरो, इसमें से कितने मोनोक्लोरो, इसमें से कितने मोनोक्लोरो. तो ये 3 मोनोक्लोरो दे रहा है, ये 4 मोनोक्लोरो दे रहा है, और ये 1 मोनोक्लोरो दे रहा है. टोटल आपको मोनोक्लोरो मिल रहा है 4 + 3 7 + 1 8 मोनोक्लोरो. और वो कौन सा है 8 मोनोक्लोरो? तो यहाँ पे है ये 3, 1 2 3 जो फर्स्ट आइसोमर से मिलते हैं. ठीक है. ये एक, ये वाला जो थर्ड आइसोमर ये वाला दे रहा है. समझ रहे हैं? देन आफ्टर सेकंड आइसोमर ऑफ पेंटेन गिव्स अ 1 2 3 and 4 मोनोक्लोरो. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, तो सिंगल मोनोक्लोराइड. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है. आप ज़रा सॉल्यूशन देख लीजिएगा. तो पहले एक बार क्वेश्चन, सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड. फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ. सिंगल मोनोक्लोराइड कौन दे रहा है मुझे? और सिंगल मोनोक्लोराइड तो ये दे रहा है, ठीक ना. 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कहाँ से मुझे मिल रहा है? तो कि ये दे रहा है पेंटेन. और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन दे रहा है? तो कि ये दे रहा है. ठीक है. यहाँ से मुझे 4 मिल रहा है, यहाँ से मुझे 3 मिल रहा है, और यहाँ से मुझे 1 मिल रहा है. ये आपका सॉल्यूशन हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंप्लीट दिस रिएक्शन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। करिए कंप्लीट, ये मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, ये थियरी का पार्ट है। जैसे कि यहाँ बोला है कि साइक्लोहेक्सेनोल, ये अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो आपको पता है कि OH रिप्लेस बाय Cl और बाय प्रोडक्ट है SO2NHCl। इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो एरिन में ये रहा पहला रिएक्शन। देखिए साइक्लोहेक्सेनोल, ये SN आप अभी मत सोचिएगा कि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये फर्स्ट आंसर, cyclohexanol gives chlorocyclohexane and the byproduct is SO2 plus HCl. सेकंड रिएक्शन देखिए, सीधा सेकंड रिएक्शन, दिस इज अ पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन, ब्रोमिनेशन आपको करना है Br2, ये रहा आंसर। ठीक है, सेकंड यू हैव टू डू ब्रोमिनेशन। तो आपके पास दो चॉइस है, ब्रोमीन कहाँ पे लगेगा, ये ब्रोमीन आप ब्रोमिनेशन आप करेंगे तो आइदर ब्रोमीन अटैच हियर और आइदर ब्रोमीन अटैच हियर। तो ऐसा है CH2CH3, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो ये प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल होगा, ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल होगा। सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये ब्रोमीन माइनस HBr प्रोडक्ट आएगी। ब्रोमीन के पास दो पॉसिबिलिटी है, वो इस कार्बन पे लग सकता है या इस कार्बन पे लग सकता है। इस कार्बन पे अगर लगेगा तो ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा, अगर इस कार्बन से लगेगा तो ये प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल से जाएगा। सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, तो ब्रोमीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे लगेगा, तो वही आंसर आएगा -HBr। देखिए ये रहा, यहाँ पे क्लोरीन लगाया है, ये क्लोरीन गलत है, आपको ये क्लोरीन को हटा के यहाँ पे ब्रोमीन लगा देना है। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगी Br2 लाइट, यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। हालांकि ये भी प्रोडक्ट मिल सकती है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजोरिटी क्वेश्चन आंसर में नहीं लिखते हैं कि ये माइनर है, तो मेजर क्या मिलेगी। चलिए अब तीसरे रिएक्शन के ऊपर, ये बहुत ही इजी है। देखिए OH एंड हियर CH2 रिएक्शन विथ HCl, बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगी, रिएक्शन विथ HCl, सोचिए। तो कुछ नहीं है, ये OH और ये H माइनस H2O एंड क्लोरीन विल अटैच हियर। ओके, तो बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन OH रिप्लेस होकर क्लोरीन लग जाएगा। ये रहा आपका आंसर, तीसरा रिएक्शन। ये भी SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से OH माइनस ये प्लस, ये H प्लस Cl माइनस, क्लोरीन यहाँ पे लगेगा, ये OH और ये H माइनस H2O निकल जाएगा। समझ लीजिए बहुत इजी है, मैंने पहले भी समझाया। चलिए अब मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। नाउ देन आफ्टर नंबर 4, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया रिएक्शन है। HI थर्ड कंप्लीट किया हमने, ये फोर्थ वन HI के साथ रिएक्शन है। तो देखिए ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के पास, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH डबल बॉन्ड CH3 हुआ ना, बाकी तो सब CH2 ऐसे। जहाँ पे रिएक्शन होना है वो थोड़ा मैं एक्सपांड कर देता हूँ। अब आपको HI लगाना है, H प्लस I माइनस। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रो पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू द इथिलीनिक कार्बन, ये दो कार्बन जो इथिलीनिक कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नो हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ के ये जो है ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आप आंसर देख लीजिए, ये रहा, कहाँ पे, यहाँ पे आयोडीन लगा, ये फाइनल आंसर है आपका। डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन, ये CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये देखिए डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो गया और यहाँ पे आयोडीन लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये CH2 हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आयोडीन जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। आगे समझ में? मार्कोनिकोव सोच लेना, मार्कोनिकोव से इजीली। चलिए अब इसके बाद का रिएक्शन, ये तो मुझे समझाना ही नहीं है, ये कोई नेम रिएक्शन है, कौन सा है आप सोच लीजिए। आइदर फिंकल्टाइन और स्वार्ट्स, दो चॉइस दे रहा हूँ, एंड आउट ऑफ बोथ एनी वन इज ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन and this is the Finkelstein reaction. You can get iodoalkane, iodoethane. आंसर देख लीजिए, ये रहा फिंकलस्टाइन रिएक्शन है जो मैंने अभी अभी नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है। अब लास्ट रिएक्शन देख लीजिए, लास्ट रिएक्शन। चलिए मैं लास्ट रिएक्शन के ऊपर जाता हूँ। क्या है लास्ट रिएक्शन? ये रहा, ये भी बहुत बढ़िया है, इजी, ये वाला नंबर 6, ये Br2 ब्रोमिनेशन हीट यूवी लाइट। तो नो एनी कंफ्यूजन, ओके। कहाँ पे ब्रोमीन लगेगा? Br2 यूवी लाइट, सोच लीजिए कहाँ पे लगेगा। ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट आएगी ऐसे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आप बोलेंगे कि ये Br2 ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा कि एडिशन रिएक्शन अगर आपको करना है तो आपको सोलवेंट चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं है, आयोनिक मैकेनिज्म है, तो ब्रोमीन। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या आंसर देते हैं पता है? वो ऐसे करते हैं कि ब्रोमीन बाय ब्रेकिंग डबल बॉन्ड ब्रोमीन विल एडेड हियर 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा यूवी लाइट में, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, -HBr आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और एक ब्रोमीन जो है वो किसी 1 2 3 4 में से कहीं पे भी लगेगा। तो ये वाला मैकेनिज्म आपको करना है। इसका नाम दे दीजिएगा, मैं ऐसे दे सकता हूँ इसको 1 2 3, कि मिनिमम नंबर मुझे देना है। ऐसे भी कर सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन। ये ब्रोमिनेशन अकर्स एट एलाइलिक कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये यहाँ पे समझाया है। तो एलाइलिक कार्बन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये मैंने गलत बोला, यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एलाइलिक कार्बन नहीं है। आइदर ब्रोमीन विल अटैच हियर और ब्रोमीन अटैच हियर, क्योंकि ये सिस्टम ये है C एंड C, डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन ये एलाइलिक है और ये एलाइलिक है। अगर साइकिल में देखना चाहे तो ये दो एलाइलिक है, ओके। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और अगर इंटेक्स क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, आंसर के साथ सॉल्यूशन के साथ मैंने दिया है, तो पहले आप अपने आप सोल्व करने की ट्राई करिए, ठीक है, और कहाँ पे आपने गलती की तो वो सुधार करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।